I'm going to explain in the next video types of the functions. Different types of the functions are, one of them is types of function is one function. One this is also known as injective function. Injective function. Another type is onto function. Onto function is also known as surjective. And last one is the bijective function. Bijective means bijective which is both of, that is one as well as one on two, one and on two is known as bijective functions. I will explain in details. It is one in the simple way. One means one input, one output. One input, one output. One input, one output, that is known as one function. जिसमें प्री एग्जिस्टिंग सेट ए में सारे एलिमेंट्स होंगे. मान लो ये फंक्शन दे रखा है, सॉरी फंक्शन ए टू बी दे रखा है. उसमें ए के सारे एलिमेंट बी के ए की एलिमेंट के साथ कनेक्ट होने चाहिए. डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ सेट ए हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस इन सेट बी. Next one is for examples. I will explain in details here. I am going to explain right now. What is the one? For examples, one function के लिए और one. Let's take an example. Let's consider this is the set A. This is the set B. A function from set A to set B. For example, in set A elements are 1, 2, 3, 4, and in set B elements are A, B, C, D, E. When you connect, this is the input. These all are the input, and these are in set B are output. When you connect this one with only any elements in set B, suppose A, you connect this 2 with suppose D, you connect this 3 with suppose B, and you connect this 4 with suppose C. आपने इनपुट दिया वन, तो सपोज ये फंक्शन एफ है, एफ ऑफ एक्स है फंक्शन. इनपुट दिया वन, तो एफ ऑफ इनपुट वन इनपुट दे दिया, ये इनपुट है वन, तो आउटपुट में क्या मिला, एफ ऑफ इनपुट वन देंगे तो आउटपुट में क्या मिल रहा है, ए. क्या मिलेगा, ए इक्वल टू ए. ऐसे ही आपने इनपुट दिया एफ ऑफ टू, इनपुट टू दिया तो आउटपुट क्या मिला, डी. एफ ऑफ टू इक्वल टू डी. सिमिलरली आपने इनपुट दिया 3 तो आउटपुट में मिला 2. B, input 4, output C. It means single input, single output. वन इनपुट के लिए आपको कितना आउटपुट मिलेगा, 1. एक इनपुट तो एक आउटपुट. देखिए यहाँ पे सेम नहीं है, सब डिफरेंट्स है, मतलब सिंगल आउटपुट. फंक्शंस के लिए ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए मस्ट बी कनेक्टेड. डू यू नो ऑलरेडी? That means this function is known as one function. This is called one because each elements in set A. This is set A, this is set B. Set B is also known as images. The elements which are connected with elements of sets are known as images of images of that element. Image of 1 is, that is A. Image of 2 is D. Image of 3 is B. Image 4 is C. These are connected with only one. This is also one of them is injective function. This is also known as injective. इंजेक्टिव फंक्शन को आप सिंपली निम्न याद करने के लिए रख सकते हैं, इंजेक्शन से याद रखिए. जैसे इंजेक्शन मतलब एक ही होल पे एक ही इंजेक्शन लगेगा. आपने इनपुट 1 दिया तो आउटपुट में भी सिर्फ एक से ही कनेक्ट है. ये कितने से कनेक्ट है, 1 से कनेक्ट है, सिर्फ 1 से कनेक्ट है. 1 इनपुट 1 आउटपुट, दैट इज इंजेक्टिव. इंजेक्टिव से याद रखिए, इंजेक्शन से याद रखिए. याद करने का तरीका, इंजेक्शन से याद रखिए. इंजेक्शन, 1 इंजेक्शन पर होल. ये होल है, यहाँ से इंजेक्शन है, एक का एलिमेंट एक के साथ कनेक्ट है, तो 1 इंजेक्शन 1 होल. 1 इंजेक्शन 1 होल, एक होल पे एक इंजेक्शन. इस तरह से याद करने का तरीका अप्लाई कर सकते हैं. दिस इज आल्सो नोन एज इंजेक्टिव फंक्शन. सिंपली 1 एलिमेंट कनेक्ट विथ 1. नेक्स्ट, if function is not one then it is known as many one. Suppose for examples, I am considering an example. This is the set A,
this is set B, that is 1 2 3, that is A B C. Suppose this element A is connected with 1 is connected with A, 2 is also connected with A, and 3 is connected with B. So here you will see, suppose ये set A set B है, एक एलिमेंट्स के इनपुट होंगे, आउटपुट में क्या मिल रहा है ए, 1 इनपुट दिया, 1 इनपुट, ये इनपुट है 1 दिया, तो आउटपुट में क्या मिला आपको ए। आपने इनपुट 2 दिया, 1 दिया तो आउटपुट ए है, 2 देने पर आउटपुट क्या है ए आ रहा है, 3 देते इनपुट क्या है इनपुट 3, तो आउटपुट आपका आ गया बी। आप देखेंगे ये सेम है, इसका मतलब इसकी इमेज और इसकी इमेज सेम है, दैट्स वाई दिस इज नॉट 1 1 फंक्शन, and those function which are not 1 1, that is known as many one function, that is many one. This is the many one function. Many मतलब many input और 1 output. So many input, these are 2 input having the same output A, 2 inputs 1 and 2 having the same output A, that are same, that's why this function is known as many one, not 1 1, not 1 1. Those function which are not 1 1 is called many one function. Next, मैथामेटिकली टू चेक द फंक्शन इज 1 1, दैट 1 1 की कंडीशन है, आप मानेंगे लेट एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 एंड देन प्रूव x1 इक्वल टू x2, x1 equals to x2. This is mathematical relation that is used to solve the problem, so you have to remember this one. If to any function to be a 1 1, any function to be a 1 1, you have to prove, let considering f of x1 is equal to f of x2, and finally you have to prove that x1 is equal to x2. For example, this is the conditions for 1 1 function. For example, you have to prove that f of x दे रखा है x plus 2 इज ए 1 1 फंक्शन, ये आपको प्रूव करना है। तो सबसे पहले ये 1 1 फंक्शन है यानी चेक करने के लिए सबसे पहले आप कंडीशन लगाएंगे, दिस कंडीशन, लेट आप कंसिडर करेंगे, एज्यूम्शन लेंगे, लेट एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2 एंड देन प्रूव x1 is equal to x2. If it is proved, then this function is 1 1 function. तो लेट कंसिडर द एफ ऑफ x1, तो x1 इनपुट, x की जगह आपने क्या रखा है x1 इनपुट, तो x1 यहाँ रख दीजिए, x की जगह क्या रख देंगे x1, तो एफ ऑफ x1 की वैल्यू आ जाएगी, देखो यहाँ से मैं लिख के बता देता हूँ, एफ ऑफ x1 के लिए इनपुट देंगे तो एफ ऑफ x1 हो जाएगा x1 इनपुट, x की जगह आपको रिप्लेस करना है x1 से, x की जगह इनपुट क्या देंगे x1, तो x1 प्लस 2, अगर x की जगह इनपुट x2 दे देंगे, ये इनपुट है तो आउटपुट में x की जगह x2 रख दीजिए, तो एफ ऑफ x2 इज इक्वल टू x2 प्लस 2, यू हैव टू पुट ईयर, एफ ऑफ x1 की वैल्यू आपने यहाँ से पुट कर दी, ये वाली वैल्यू इसके बराबर है x1 प्लस 2 के बराबर, तो मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ x1 प्लस 2, यहाँ से x2 की वैल्यू एफ ऑफ x2 की वैल्यू ये पुट कर दीजिए x2 प्लस 2, आफ्टर कैंसल आउट दिस कैंसल, दैट वी हैव प्रूव्ड x1 इक्वल टू x2, दैट मीन्स दिस फंक्शन इज 1 1 फंक्शन, दैट्स वाई मैथमेटिकली टू प्रूव यू हैव टू remember this result. To prove 1 1 function, you have to consider let f of x1 is equal to f of x2, and then you have to prove x1 is equal to x2. This result is very very important. Learn it. Next, on-to functions. What is the on-to function? Let consider that two sets are given here. This is the set A and this is the set B. That are elements are 1 2 3. These are elements, images are A B C and D. When you started to connect this element, this will connect this connect, 2 connect with C and 3 connect with B, and suppose there is 4 is also connect with D, then you see that the all elements in set B are connected. सारे एलिमेंट्स इन सेट बी के सारे कनेक्टेड है, कोई भी एलिमेंट्स ऑर्फन एलिमेंट्स नहीं है, तो दैट फंक्शन इज नोन एज ऑन टू फंक्शन। इसमें सारे एलिमेंट कनेक्ट है, देखो ए कनेक्ट है, बी भी कनेक्ट है, सी भी कनेक्ट है दूसरे, और डी भी कनेक्ट है, तो दैट फंक्शन इज नोन एज ऑन टू फंक्शन। कोई भी ऑर्फन, नो ऑर्फन एलिमेंट, देन दिस फंक्शन इज नोन एज ऑन टू फंक्शन। दिस इज ऑन टू फंक्शन,
another result is, suppose this is the function given from set A to set B, set A to set B. This is the domain, this is the codomain. In this case, this is the codomain is equal to range. Onto case, in case of onto function, this is the domain. I am writing here. This is very important. This is the domain. This is the codomain. In case of onto function, if the function is onto, then this domain is equal to the range of the function. So domain equal to range. Sorry, codomain equal to range. Codomain equal to range. If the codomain equal to range, then the codomain is equal to range, then this function is also known as onto function. Range means all the elements of set B are connected, then this function is known as onto function. If there is no orphan elements in set B. For example, this is the set I am writing 1, 2, and these elements are A, B, C. Suppose 2 is connected with A, 1 is connected with B. So you will see in this set here, C is not connected. That means C is the orphan element. This is not connected. That means not onto. This is not onto function, not onto. And those functions which are not onto are also known as into function. This is into function. This is into function. Not onto means into function. This is not onto. Why this is not onto? Because this is not connected. This is the orphan element. अगर ऑर्फन एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट कनेक्ट नहीं है सेट बी में, ऑर्फन एलिमेंट, तो उसे क्या कहेंगे आप? नॉट ऑन टू. क्या कहेंगे? नॉट ऑन टू फंक्शंस. ठीक है. और नेक्स्ट आई वांट टू एक्सप्लेन वन थिंग्स मोर. If the function is from set A to B, it means, suppose this is function from set A to B, it means when we consider any element belong to set B, for example, let's consider y belongs to set B. That implies y belong to set B. That implies there exists x. There exists x belongs to set A. ठीक है. There exists for every y, for every elements in set B that let's consider y. कोई भी सेट आपने एलिमेंट कंसिडर किया सेट बी में, मान लो उसका एलिमेंट y है, तो उसके अक्रॉस आपको देयर मस्ट बी एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू सेट ए. उसके अक्रॉस आपको एक x की वैल्यू मिलेगी इन सेट ए. देन दिस फंक्शन इज नोन एज onto functions. नेक्स्ट लास्ट वन इज द स्पेशल केस दैट इज नोन एज बाइजेक्टिव फंक्शन. किसी भी फंक्शन को बाइजेक्टिव होने के लिए दोनों कंडीशन होनी चाहिए. 1, 1 भी होना चाहिए और आपका 1, 2 होगा. दोनों कंडीशन है, 1, 1 भी है, 1, 2 भी फंक्शन है, तभी आप उस फंक्शन को क्या कहेंगे? बाइजेक्टिव फंक्शन. फॉर एग्जांपल, आई एम कंसीडरिंग ए बी सी, दैट इज 1, 2, 3. आई एम कनेक्टिंग दिस 1 विथ दिस 2, बी विथ दिस 1 एंड सी विथ दिस 1. तो सबसे पहले आप सिर्फ सेट बी में देखेंगे कि सारे एलिमेंट 1 के साथ कनेक्टेड. जैसे ये ए है, कनेक्ट विथ 2 के साथ और कोई कनेक्ट नहीं है, सिर्फ 1 एक एलिमेंट कनेक्ट है. इनपुट ए दिया तो आउटपुट मिला आपको 2. इनपुट बी लिया तो आउटपुट मिला 1. इनपुट सी लिया तो आउटपुट मिला 3. इसका मतलब सारे एलिमेंट्स एक के साथ ही कनेक्ट है, एक एलिमेंट एक से कनेक्ट है. इसका मतलब दिस फंक्शन इज 1, 1. दिस इज 1, 1 फंक्शन. आई एम राइटिंग इन शॉर्ट वे 1, 1. ठीक है. सेकेंड, ऑन टू, देर इज नो ऑर्फन एलिमेंट. इसमें सारे एलिमेंट कनेक्ट है, कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है, तो ये दिस इज ऑन टू फंक्शन, दैट इज ऑन टू. तो दोज फंक्शन विच इज 1, 1 ऑन टू आर नोन एज, दैट्स वाई दिस फंक्शन इज बाइजेक्टिव फंक्शन. दिस इज कॉल्ड बाइजेक्टिव फंक्शन. आपको सेट करना है 1, 1 भी होना चाहिए. अगर 1, 1 भी है, 1, 2 भी है, तब आप उसे कहेंगे बाइजेक्टिव. ठीक है. लेट्स स्टार्ट द लेक्चर. In the definition in the CBSE, definition number 5, function दे रखा है from x to y, set A, this is the set A to set B, this is the function from set, this is the x set, another set is y, so that is the function from x to y, is considered to be 1, 1, or this is also known as injective. If the images of distinct element of x under the function f are distinct, सारे एलिमेंट्स इन सेट ए आर हैविंग द दिस इज इन सेट बी यूनिक इमेजेस.
देयर आर डिस्टिंक्ट इमेजेस इन सेट बी, एक एलिमेंट एक के साथ कनेक्ट है, दैट मीन डिस्टिंक्ट images, that is known as 1 1 function. And mathematically, for every element x1 comma x2 belongs to set x such that f of x1 is equal to f of x2 implies x1 is equal to x2, then this function is also known as 1 1 function. If this is not 1 1, then it is called many one function, otherwise this is called many one function. Already I explained. ठीक है, एक एलिमेंट्स की एक ही इमेज हो, जैसे 1 2 3 है, दिस इज ए एंड दिस इज द बी, वन एलिमेंट 1 के साथ कनेक्ट है, 2 कनेक्ट है, आप कहेंगे 3, तो दिस इज नॉट द फंक्शन अंटिल ये सेट एक्स के सारे एलिमेंट कनेक्ट है, तभी आपका ये फंक्शन कंसीडर होगा, फंक्शन ही नहीं है। तो इसका मतलब सपोज एलिमेंट 3 इज कंसिडर विथ connect with C, so all the elements are connected one element in set P, that's why this function is known as 1 1 function. This is the 1 1 function. Next, definition number 5. A function definition number 5, the function from x to y is said to be onto. Onto is also known as surjective. This is also known as surjective if every element of y is the image of some element x under f for every y. That means for every y belongs to set y, suppose this is the function from set x to y, if you are considering any element, suppose this is y belongs to set b, that is y, there must be exist an element in x, there must be x belongs to set a for every y, such that f of x, इनपुट x देंगे तो आउटपुट क्या मिलेगा y, f of x equal to y, that's this function is known as onto. Those functions which are not onto, that means into. Let's for examples from CBSE NCERT books, something is given, there are two sets considering x1 and x2, तो you are connecting, देखो first element 1 is connected, this is the set x1, this is the set x2, you have to check every element of this set 1 is connected with one element, that is a in set b, that is 2 is connected with b, ठीक है, 3 is connected with one element d, and 4 is also connected with c, that means all the elements are connected with only one, that means this is the 1 1 function, this is the 1 1 function. Second one, क्या इसमें ऑर्फन एलिमेंट है, आप कहेंगे ई और एफ की कोई भी इमेज नहीं है, इसका मतलब ये ऑन टू फंक्शन नहीं है, क्योंकि ये ऑर्फन एलिमेंट है, ये ई और एफ क्या है, ये ई और एफ ये दोनों क्या है आपके लिए ऑर्फन एलिमेंट है, ई और एफ ऑर्फन है, इसका मतलब जब भी आपको ऑर्फन एलिमेंट है जिसकी कोई भी इमेज नहीं बन रही है, इसका मतलब दिस इज 1 1 ऑन टू, 1 1 है, यस ऑन टू, क्योंकि ऑर्फन एलिमेंट है तो दिस इज आल्सो ऑन टू. नेक्स्ट check this function, this is 1 1 या many one, check first 1 1 many one, you are considering 1 is connected with b and 2 is also connected with b, same element से connect है, 1 भी connect है, देखो 1 भी connect है इससे और 2 भी connect है, एक ही एलिमेंट से connect, तो this is many one, that is many one function, that is not 1 1 function. सेकेंड, क्या इसमें ऑर्फन एलिमेंट है, तो आप देखेंगे ई की भी कोई इमेज नहीं है, देखो डी कनेक्ट है 4 के साथ, सी कनेक्ट है 3 के साथ, बी कनेक्ट है 2 के साथ, बी कनेक्ट है 1 के साथ, तो देखो ई कोई कनेक्ट नहीं है, एफ भी कनेक्ट नहीं है, ए भी कनेक्ट, दिस आर ऑर्फन एलिमेंट. जब भी ऑर्फन एलिमेंट जब भी आपके पास होंगे ऑर्फन होंगे, ऑर्फन है मतलब दैट इज नॉट ऑन टू, दैट इज नॉट ऑन टू फंक्शन, दैट इज नॉट ऑन टू, दैट इज मैनी वन एंड नॉट ऑन टू. Next examples I am reviewing. Next, in the next example you are watching here, in the set element a, 1 is connected with this one a and 2 is also connected with this a. अगर आप इनपुट 1 देंगे, जैसे 1 इनपुट दिया तो आउटपुट क्या मिला a, 2 इनपुट दिया तो भी आउटपुट क्या मिला आपको, 2 देंगे तो भी आउटपुट a, मतलब सेम है, ठीक है. तो दिस इज मैनी वन फंक्शन, दिस इज मैनी वन, दैट इज मैनी वन फंक्शन, मैनी वन फंक्शन. सेट बी में क्या 3
3 कनेक्ट है, बी के साथ 4 कनेक्ट है, सी के कोई भी ऐसा ऑर्फन एलिमेंट है जो कनेक्ट नहीं है, सारे एलिमेंट कनेक्ट है। देखो सी कनेक्ट है 4 के साथ, बी कनेक्ट है 3 के साथ, ए कनेक्ट है 2 के साथ, ए कनेक्ट है 1 के, सारे एलिमेंट्स कनेक्ट है। सेट, ये सेट बी में ये सेट है, ये सेट बी, सेकेंड x2 3 सेट, सारे एलिमेंट कनेक्ट है। दैट मीन्स दिस फंक्शन इज ऑन टू, that is on to also, that means this is also many one function as well as on to function. This is example number 3. नेक्स्ट एग्जाम्पल चेक करते हैं। फंक्शन में 1 एलिमेंट कनेक्ट है बी के साथ, 2 एलिमेंट कनेक्ट है सी के साथ, 2 कनेक्ट है सी के साथ, 3 कनेक्ट है ए के साथ और 4 कनेक्ट है डी के साथ। सारे एलिमेंट सिंगल एक ही एलिमेंट से कनेक्ट है। सारे एलिमेंट जब भी एक ही एलिमेंट से कनेक्ट है, देखो 1 कनेक्ट है ए के साथ, 2 कनेक्ट है बी सी के साथ, 1 कनेक्ट है बी के साथ, 2 कनेक्ट है सी के साथ, 3 कनेक्ट है ए के साथ और 4 कनेक्ट है डी के साथ। सारे कनेक्टेड है और एक ही एलिमेंट से कनेक्ट है तो 1 1 हो गया। और सारे एलिमेंट, इसमें कोई ऑर्फन एलिमेंट है, सारे कनेक्टेड है, इसका मतलब ऑन टू भी हो जाएगा। और दोज फंक्शन जो 1 1 भी होते हैं, ऑन टू भी होते हैं, तो उन्हें क्या कह सकते हैं? बाइजेक्टिव फंक्शन। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन। अंडरस्टैंड? आई एम राइटिंग हियर। okay, I explain all the example one by one. This is 1 1 function, correct. This is 1 1 function, that is on to function, that is not on to function. These are orphan element, that is not on to. Right here, correction is here, that is not on to, क्योंकि एलिमेंट ऑर्फन होंगे तो ये नॉट ऑन टू है। नेक्स्ट, दिस इज मैनी वन फंक्शन, यस दिस इज मैनी वन फंक्शन, दिस इज ऑन टू फंक्शन, नॉट, दिस इज नॉट ऑन टू फंक्शन। तो आपको सिंपली एग्जाम्पल चेक करके इजीली प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, आपने देखा, आपको चेक करना है। देखो 1 1 फंक्शन है, सिंपली कंडीशंस होती है, या तो फंक्शन 1 1 है और मैनी वन है। फर्स्ट आपने ये चेक करना है 1 1 है या मैनी वन। दूसरे में चेक करोगे आप ऑन टू है और नॉट ऑन टू है, नॉट ऑन टू। या तो 1 1 होगा तो मैनी वन नहीं होगा, मैनी वन है तो 1 1 नहीं होगा। दोनों में से एक ये चेक करेंगे, दूसरा ये चेक करेंगे। और ऐसा फंक्शन जो दोनों हो, 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो, तो उस फंक्शन को क्या कहते हैं? बाइजेक्टिव कहते हैं। दैट फंक्शन इज नोन एज बाइजेक्टिव फंक्शंस। नेक्स्ट एग्जाम्पल आई राइट डाउन हियर, ऑलरेडी आई एक्सप्लेन दैट फॉर ए फंक्शन x to y, that function is on to if and only range of function is equal to y। बताया था, y मतलब सेट b, सारे एलिमेंट कनेक्ट होंगे तो सारे रेंज किसके बराबर? को डोमेन इक्वल टू रेंज, रेंज ऑफ फंक्शन इज सेट बी, कंप्लीट सेट बी। तो जैसे एग्जांपल वापस बता देता हूँ, 1 2 3 है, दैट इज ए बी सी। 1 इज कनेक्टेड दिस, 2 इज कनेक्टेड दिस, 3 इज कनेक्टेड दिस इज 1 1 फंक्शन। एज वेल एज every element are connected, this 1 connected 1, b connected 3, c connected with 2, all elements are connected, no orphan element। that means all the, this is the domain, this is the domain, input domain होता है, और this is the codomain, and what the corresponding value are known as, corresponding value of y, corresponding value are known as range। तो range is ABC, all elements are connected, that means codomain equal to range। in case codomain equal to range, set B, this is the complete set, मान लीजिए this is set X, this is complete set Y, the range of Y function is equal to complete set Y B, that is B। this is important results। next, a function definition, a function from X to Y is said to be 1 1। फंक्शन अगर आपका 1 1 भी है एंड ऑन टू दोनों है, तभी आपका फंक्शन क्या कहलाता है? बाइजेक्टिव कहलाता है। 1 1 भी होगा, ऑन टू, देन दिस फंक्शन इज नोन एज बाइजेक्टिव फंक्शन। इफ बोथ 1 1 एंड ऑन टू, in that case this function is called bijective function, it is called bijective function, already I explained। next I am going to explain that some examples, through the examples, so you can easily connect। example 7, let A be the set of all 50 students of class 10th in school, let function from set A to natural number n। तो आपका ये सेट मान लीजिए, दिस इज द सेट ए, मान लीजिए ये एक सेट है, दूसरा सेट है नेचुरल नंबर का सेट है, तो ये मान लीजिए सेट बी, जिसमें क्या लिखे हुए हैं आपके सारे नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहाँ से होंगे? 1 2 3 4 कंटिन्यू बढ़ते जाएंगे। डिफाइंड बाई ए फंक्शन एफ एक्स
रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट एक्स, क्लास टेंथ के स्टूडेंट कितने, 50 स्टूडेंट, उनके रोल नंबर मान लीजिए 50 स्टूडेंट के रोल नंबर मान लीजिए इसमें आपके सेट ए में 1 रोल नंबर, 2 3 4 रोल नंबर, 5 6 7 8 9, 50 स्टूडेंट है तो 50 तक रोल नंबर होंगे आपके। सो दैट फंक्शन इज 1 1 और बट नॉट ऑन 1। अब देखेंगे इस साइड तो आपके 50 स्टूडेंट है, आपके कितने 50 स्टूडेंट, ये फिक्स वैल्यू है स्टूडेंट, इनके रोल नंबर, एक स्टूडेंट का एक ही रोल नंबर होगा, ठीक है। यहाँ क्या है, नेचुरल नंबर मान लो 50 तक नहीं, नेचुरल नंबर तो आप 50 से भी ज़्यादा होंगे, रोल नंबर फिक्स है 50 तक, मान लो यहाँ पे 49 है, 50 51 52, नेचुरल नंबर आपके बढ़ते जाएंगे, नेचुरल नंबर कभी एंड नहीं होंगे। जबकि सेट ऑफ स्टूडेंट की संख्या क्या है, फिक्स 50 तक है। मान लो आपका रोल नंबर 1 है, एक स्टूडेंट है उसका रोल नंबर क्या है 1, ठीक है। दूसरा स्टूडेंट है उसका रोल नंबर 2, ये स्टूडेंट है, सेट ए में क्या माना है स्टूडेंट, और सेट बी में जो नेचुरल है उसको मैंने मान लिया रोल नंबर, क्या मान लिया रोल नंबर। एक स्टूडेंट है, फर्स्ट स्टूडेंट है उसका रोल नंबर 1, सेकंड स्टूडेंट का रोल नंबर 2, थर्ड स्टूडेंट का रोल नंबर 3, फोर्थ स्टूडेंट का रोल नंबर 4, ऐसे ही 50 जो 50 नंबर पे स्टूडेंट होगा उसका रोल नंबर हो जाएगा 50। अब ये सारे एलिमेंट कनेक्ट हो गए, बस आप देखेंगे नेचुरल नंबर में कुछ आगे 51 के 50 के बाद भी नेचुरल नंबर होंगे, 51 52 53 54 एंड सो ऑन। तो यू विल सी ईच एलिमेंट इज कनेक्ट विद वन, इसका एक स्टूडेंट का रोल नंबर यूनिक होगा, तो एवरी स्टूडेंट है यूनिक रोल नंबर। एक स्टूडेंट है तो सेकंड स्टूडेंट उसका भी रोल नंबर एक फिक्स होगा, तो रोल नंबर आपके फिक्स है। एक स्टूडेंट का एक ही रोल नंबर होगा, 2 रोल नंबर पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब सारे एलिमेंट्स जो एक सेट ए के नेचुरल नंबर सेट बी से कनेक्ट है वो एक के साथ एक कनेक्ट है, इसका मतलब दिस इज 1 1 फंक्शन। 1 1 क्यों 1 1 है, क्योंकि एवरी स्टूडेंट हैव ए यूनिक रोल नंबर। एंड सेट बी में आप देखेंगे जिनकी कोई भी इमेजेज नहीं है, जैसे कोई 1 की इमेज है 1, 2 की 2 है, तो आप देखेंगे 51 52 जो भी एलिमेंट्स आप देख रहे हैं इनकी कोई भी इमेज नहीं बनेगी, जाके सारे नंबर ये सारे नीचे सारे बचेंगे, वो क्या हो जाएंगे ऑर्फन हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे ऑर्फन एलिमेंट होंगे जिसकी कोई भी प्री इमेज नहीं है। इट मीन्स दैट इज 1 1 बट दैट इज नॉट ऑन टू, दैट इज नॉट ऑन टू, that is not on to, that we have proved, that is 1 1 1 1 but not on to, that is not on to, we have proved। question number next question number है example 8, show the function from natural number a to a and given by f of x is equal to x is 1 1 but not on to। तो सिंपली आप देखिए इनपुट देते जाइए, f of x एक फंक्शन दे रखा है, f of x दे रखा है 2x के बराबर, ठीक है। तो दो तरीके से आप प्रूव कर सकते हैं, पहला आप इनपुट रखते जाइए तो आउटपुट आपको मिलता जाएगा। नेचुरल नंबर n टू n, तो इसमें नेचुरल नंबर n है, दूसरा सेट है उसमें नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन, नेचुरल नंबर कंटिन्यू है। अब जैसे इनपुट आप देंगे, इनपुट आपने 1 दिया, इनपुट दिया इस फंक्शन में 1, इनपुट दिया आपने 1, तो एफ ऑफ 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से 2 इंटू एक्स की जगह 1 रख दीजिए, एक्स की जगह 1 रखा है 1, दैट इज इक्वल टू 2। तो जैसे ही 1 इनपुट दे तो आउटपुट आपको मिला 2, ऐसे ही इनपुट दे दीजिए, नेक्स्ट इनपुट दे दीजिए 2, जैसे आप इनपुट 2 देंगे तो एक्स की जगह क्या 2 रख दीजिए, इसी फंक्शन में एक्स की जगह 2 रखा तो 2 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 4। तो इनपुट दिया 2 तो आउटपुट मिला 4, 2 का आउटपुट मिलेगा आपको 4। ऐसे ही नेक्स्ट नंबर 3 का आउटपुट मिल जाएगा एफ ऑफ 3, तो एक्स की जगह 3 रखेंगे तो 2 इंटू 3 यहाँ इनपुट हो इक्वल टू 6, 3 इनपुट दिया तो आउटपुट मिलेगा 6। इस तरह से आप देखेंगे इस एलिमेंट के सारे एलिमेंट्स कनेक्टेड है, 1 एलिमेंट 1 के साथ कनेक्टेड, दैट मीन्स दिस इज 1 1 फंक्शन। पर आप देखेंगे कि सेट बी में ये सेट है, इसमें देखो ऑर्फन एलिमेंट आपको मिलेंगे, 1 की कोई भी इमेज नहीं है, तो आप लिख सकते हो सिंस 1 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सेट बी नेचुरल नंबर बट देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी वैल्यू ऑफ एक्स, एनी वैल्यू ऑफ x belongs to natural number।
इस 1 के अक्रॉस कोई भी यहाँ पे इमेज नहीं है, क्योंकि 1 कनेक्ट नहीं है। ऐसे ही आप देख सकते हो 3 भी कनेक्ट नहीं है, 5 भी कनेक्ट नहीं है। तो ये सारे क्या है, ऑर्फन एलिमेंट्स है। क्या है, ऑर्फन। क्या है, ऑर्फन एलिमेंट। दैट मीन्स दिस इज नॉट ऑन टू। दैट मीन्स दिस इज not on to, not on to. That's why we have proved both one, that is 1 and not on to. In another way you can prove this one, I will explain. तो प्रूव कर सकते हैं मैथमेटिकली। आपको बताया था फंक्शन एफ ऑफ, अगर एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2 वैल्यू आ जाए, implies considering f of x1 is equal to f of x2 and we have proved x1 is equal to x2, then this function is 1 फंक्शन। क्या हो जाएगा, 1 फंक्शन। तो ये 1 फंक्शन कर सकते हैं। x1 की जगह यहाँ पे 1 रखेंगे तो 2x1, तो आप देखेंगे 2x1 इज इक्वल टू x2 के लिए 2x2, तो आप कैंसिल आउट कर देंगे तो x1 किसके बराबर आ जाएगा, x2 के बराबर इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब दिस फंक्शन इज 1 को ऐसे भी प्रूव कर सकते हैं मैथमेटिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल, शो द फंक्शन फ्रॉम रियल नंबर x टू r टू r, रियल नंबर टू रियल नंबर, डिफाइंड एज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज नाइदर 1 नॉट ऑन टू। तो आप इनपुट देखिए, ये सेट अब नेचुरल रियल नंबर है, इसमें आप रियल नंबर के एग्जांपल्स कुछ ले लीजिए। एग्जांपल्स के थ्रू आप चेक भी कर सकते हैं कि कौन कौन से एग्जांपल इसमें आप इजीली सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे एग्जांपल के थ्रू। I am considering this is the real number, these are some real numbers, output as a function is given f of x is equal to x square। अब आप इनपुट जैसे ही 1 दे देंगे, रियल नंबर है, दिस इज 1, इनपुट 1 है तो आउटपुट मिलेगा 1 का स्क्वायर, एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर, दैट इज 1। तो आउटपुट भी क्या मिला आपको, 1 इनपुट 1 आउटपुट। आपने अगर इनपुट दे दिया हाफ, तो आउटपुट क्या मिल जाएगा, हाफ इनपुट है तो आउटपुट x की जगह हाफ रखा तो आउटपुट मिलेगा हाफ का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 1/4। आपने इनपुट रखा -1, क्या रखा, -1, तो -1 एफ ऑफ -1, तो -1 यहाँ पे रखेंगे, -1 का स्क्वायर, आउटपुट मिला 1। तो -1 पे भी आपको आउटपुट क्या मिलेगा, 1। ठीक है, 0 रख देंगे, एफ ऑफ 0, तो वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 0। हाफ पे क्या मिला 1/4, तो यहाँ पे 4, 0 पे क्या मिला 0। तो आप और भी रियल नंबर बहुत सारे हो सकते हैं, मैं ये इतनी कंसीडर कर रहा हूँ, और भी हो सकते हैं। और आपने एक चीज़ देखी, अगर इस एलिमेंट में मान लो -1 होगा, इस सेट में अगर -1 है, क्योंकि यहाँ -1 ऑलरेडी कनेक्ट किसके साथ है, आउटपुट में क्या है, 1 के साथ कनेक्ट है। देखो 1 एलिमेंट इनपुट 1 है तो भी आउटपुट कितना है 1, इनपुट -1 है तो भी आउटपुट क्या मिल रहा है 1। तो 2 एलिमेंट्स कनेक्ट है 1 के साथ, 1 2, दैट मीन्स दिस फंक्शन इज मैनी 1 फंक्शन। क्यों मैनी 1 है, तो आप लिख सकते हो मैनी 1, सिंपली कंडीशंस लिख सकते हैं। सिंस एफ ऑफ 1 इनपुट दिया तो भी आउटपुट क्या मिला, इनपुट 1 है तो आउटपुट 1। एफ ऑफ -1 इनपुट दिया, -1 इनपुट तो भी आउटपुट क्या है 1। सेम इनपुट बट इनपुट आउटपुट सेम है, बट इनपुट 1 इज नॉट इक्वल टू -1। इनपुट जो वैल्यू है x और -1 दोनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब दिस इज नॉट 1 नॉट 1 नेक्स्ट, दिस इज नॉट 1 फंक्शन। नेक्स्ट, दिस इज मैनी 1 फंक्शन, दैट इज ऑन टू और नॉट ऑन टू, दैट इज नॉट ऑन टू, सिंस ऑन टू भी नहीं है। क्यों नहीं है, तो आप देखेंगे एक ऑर्फन एलिमेंट है, जैसे ये -1 है, इसकी कोई भी इमेज यहाँ पे लाइक नहीं करेगी। बाकी एलिमेंट्स कनेक्ट है पर ये -1 रह गया, तो आप देखेंगे इस -1 क्या है, ऑर्फन एलिमेंट है। तो आप लिख सकते हो -1 बिलोंग्स टू सेट R, -1 बिलोंग्स टू सेट, दिस सेट R हैव नो वैल्यू ऑफ x, नो वैल्यू ऑफ x, नो वैल्यू ऑफ x, इसके अक्रॉस x की कोई भी वैल्यू इस सेट में नहीं है। x बिलोंग्स टू दिस सेट R, that's why not on to, that is not on to, that is not on to। So this function is not 1 not on to, we have proved neither 1 neither 1 nor on to, that's we have proved। this function is f of x square is not 1 and not on to, दोनों नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, so that the function
नेचुरल नंबर टू नेचुरल गिवन बाय दिस इज x+1। इफ x इज ऑड, x ऑड है तो x+1 होगा उसकी वैल्यू, और फंक्शन की वैल्यू x इज इवन है तो फंक्शन की वैल्यू होगी x-1। इज बोथ 1 1 ऑन 2। तो सबसे पहले फॉर 1 1 पहले 1 1 प्रूव करते हैं। फॉर 1 1 आप मैथमेटिकली जानते हैं, फॉर 1 1 लेट f of x1 is equal to f of x2 and then prove x1 is equal to x2। ये आप मानेंगे f of x1 f of x2, अगर वैल्यू x1 x2 के बराबर है तो आप कहेंगे ये फंक्शन क्या है, 1 1 फंक्शन है। पर यहाँ पे आप देखेंगे इस फंक्शन में ऑड वैल्यू है, जब x की वैल्यू ऑड है तो x+1 कंसिडर होगा, x की वैल्यू इवन है तो x-1। तो मैं mn मान लेता हूँ। लेट एक है m, दूसरा मान लीजिए f ऑफ m इक्वल्स टू f ऑफ n। मैं mn की वैल्यू अलग अलग फंक्शन की वैल्यू क्यों मान रहा हूँ, क्योंकि एक इवन है एक ऑड है। अब इसको दोनों वैल्यू को पुट कर दीजिए, वह लिखना है तो लिख सकते हैं, आप कंसिडर कर रहे हैं तो लेट इफ m इज ऑड एंड n इज इवन। जैसे अब आप अप्लाई करेंगे फर्स्ट कंडीशन, m की वैल्यू क्या है ऑड, n की वैल्यू क्या है इवन, तो ये फंक्शन की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ से। m ऑड है तो f ऑफ m की वैल्यू ऑड फंक्शन कौन सा है, इससे आएगी x+1, यहाँ x की जगह क्या आ जाएगा m, तो m+1 इक्वल टू f ऑफ n क्या है इवन की वैल्यू यहाँ से आएगी, इवन की वैल्यू क्या है x-1, यहाँ पे रख देंगे n x की जगह तो n-1। तो आप देखेंगे ये वैल्यू कभी भी आपके इक्वल नहीं होगी, ये आप जैसे प्रूव करोगे ये एक साइड ले जाओगे तो m-n इक्वल टू -2। तो आप देखेंगे m-n बिलोंग्स टू इंटीजर, दिस इज नॉट पॉसिबल। m-n दोनों का डिफरेंस बिलोंग इक्वल टू z, बट दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल। ऑन टू पॉसिबल नहीं है इस केस में, केस फर्स्ट है। अगर आपने m की जगह सिमिलरली अगर आप n को ऑड ले लेंगे, m को इवन, तब भी आपका पॉसिबल नहीं होगा। अब केस 2 की बात करते हैं। केस 2 में क्या करेंगे, केस 2 इफ बोथ आर ऑड या फिर बोथ आर इवन। देखो दो m और n की वैल्यू मैं वापस बता देता हूँ, इवन ऑड m और n ये ऑड है ये इवन है, या फिर ये इवन है ये ऑड है, दोनों के लिए पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। अगर दोनों वैल्यू ये भी है इवन है ये भी इवन है, ठीक है, m की वैल्यू दोनों इवन ले ले या फिर दोनों ऑड लेके ये चेक करेंगे। इफ m बोथ आर ऑड, इफ m n बोथ आर ऑड, अगर वैल्यू दोनों ऑड कंसीडर करेंगे, दोनों वैल्यू ऑड है तो आपको ऑड फंक्शन की वैल्यू x+1 इसमें रख दीजिए। तो जैसे आप वैल्यू पुट कर देंगे f ऑफ m इक्वल्स टू f ऑफ n, वैल्यू पुट कर दीजिए ऑड के लिए इस फर्स्ट वाले फंक्शन में x+1, तो x की जगह m रख दीजिए, तो m+1 इक्वल टू n रख दीजिए n+1। इस केस में आप देखेंगे m किसके बराबर है, m इक्वल्स टू n आ गया। ये आपको प्रूव है f ऑफ m इक्वल टू f ऑफ n, दैट मीन्स f ऑफ m इक्वल टू n होना चाहिए, तो ये आपका प्रूव हो गया। दैट मीन्स दिस इज 1 1, दिस इज 1 1 फंक्शन। एक और केस होगा, केस थर्ड कंसीडर कर लीजिए। केस थर्ड में क्या होगा, यहाँ पे बोथ आर ऑड बोथ इवन, इफ m n बोथ आर इवन, दोनों वैल्यू क्या है इवन, तो इवन फंक्शन कंसीडर होगा। f ऑफ m इक्वल टू f ऑफ n पुट करने के लिए आपको प्रूव करना है 1 1 के लिए वैल्यू कौन से वाले में पुट करेंगे, इवन वाले में। इवन वाला फंक्शन कौन सा है, ये वाला। अब सेकंड वाला कंसीडर होगा, इवन में x-1 है तो m-1 हो जाएगा, n-1 हो जाएगा, पुट कर देंगे, f ऑफ m की वैल्यू हो जाएगी। देखो आपको f ऑफ x दे रखा है x-1, कौन से केस में, इवन केस में, तो यहाँ पुट कर रहे हैं, इवन के केस की बात हो रही है, तो इवन के लिए ये वाली वैल्यू पुट कर दीजिए। m रख देंगे x की जगह, तो f ऑफ m क्या आ जाएगा, m-1 आ जाएगा, और n रख देंगे इनपुट x की जगह, तो f ऑफ
एन, तो एन माइनस वन हो जाएगा। तो ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ दोनों। एफ ऑफ एम की वैल्यू ये आ जाएगी एम माइनस वन, एफ ऑफ एन की एन है ये, एन की वैल्यू आ जाएगी एन माइनस वन। इसको सॉल्व कर देंगे तो ये माइनस वन से कैंसिल, तो एम इक्वल टू क्या आ गया एन। एफ ऑफ एम ये माना था आपने और एम इक्वल टू एन आ जाएगा। इसका मतलब दिस इज इवन फंक्शन, सॉरी दिस इज वन वन फंक्शन, दिस इज वन वन फंक्शन। दैट्स वाई thus we have proved this is 1 1 in this cases। ठीक है, अब we have to now we have to prove for 1 2 function, we have to prove for 1 2 for 1 2। how to prove 1 2 function? 1 2 के लिए आपको जो फंक्शन दे रखा है उसकी वैल्यू दे रखा है, इसको आप कंसिडर करेंगे फंक्शन फ्रॉम n to n। For example, I am considering elements in set, this is the function from n to n, this is the set n to n, this is the set n to n। तो सबसे पहले आप ओड के लिए क्या कंसिडर, सपोज इसमें एक एलिमेंट आप कंसिडर कर दीजिए, सेकंड सेट है जिसमें आप कंसिडर करेंगे एलिमेंट 2r + 1। 2r प्लस क्या है, ओड है। 2r + 1 कौन से आएगा, +1 इससे आएगा। तो x की वैल्यू फॉर दिस इमेजेस देयर एग्जिस्ट ए इनपुट इन सेट x, मतलब फॉर दिस आउटपुट देयर एग्जिस्ट ए वैल्यू ऑफ x इन दिस सेट, that will be the 2r + 1, that will be x is equal to यहाँ पे 2r across this for odd numbers। किसके लिए, for odd numbers। तो आई एम राइटिंग for any odd number, that is odd number 2r + 1 in that is domain, that is codomain, this is the codomain, this is the codomain, in codomain for any odd number 2r + 1 in codomain, codomain n is the image of this is the image of this 2r, is the image of 2r, this is the image of this 2r। इसकी इमेज ये है, ये डोमेन क्या कहलाता है, इमेज बनाता है, इमेज। तो 2r + 1 किसकी इमेज है, 2r की। 2r के जैसे इनपुट दोगे दिस इज ऑड नंबर, जैसे आउटपुट में मिलेगा 2r + 1, 2r + 1 दैट इज 2r, इसकी इमेज है इन डोमेन, दिस इज द डोमेन n, डोमेन n and for any even number, इवन नंबर मान लो, ये इवन नंबर आपका आउटपुट है। सिमिलरली इवन नंबर 2r, इवन नंबर क्या है 2r, तो इनपुट यहाँ पे क्या है 2r, वैल्यू यहाँ इसके इक्वल होगा तो 2r + 1 इनपुट होगा, क्या हो जाएगा 2r + 1। आउटपुट आपको ये मिल रहा है तो इनपुट क्या दिया होगा 2r + 1, तो आउटपुट मिला होगा 2r। तो यहाँ 2r + 1 इवन के केस में रख दीजिए, 2r + 1 इनपुट रख देंगे, 2r + 1 यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, 2r + 1 -1 कैंसिल, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, चेक करनी 2r + 1 -1, तो आपको आउटपुट क्या मिल रहा है 2r। तो ये लिखा हुआ है 2r फॉर एनी इवन नंबर, फॉर इवन नंबर दिस इज द इवन नंबर, 2 का मल्टीपल है, दिस इज द इवन नंबर 2r इन codomain। Similarly I am writing codomain n, this is the set n is the image of, this is the image of what, this 2r + 1, 2r + 1 belongs to this domain n, this is the domain n, in domain n, that's why this function is 1 2 function, that's why this is, so function f is 1 2, thus we have proved function is 1 1 1 2। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, 1 2 के केस में आप सिंपली ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, अच्छे से ये क्वेश्चन को रिवाइज कीजिए। 1 2 के केस में जब भी आप आउटपुट में आपको 2r + 1 मिलेगा, कब मिलेगा, जब इनपुट 2r होगा। 2r ये क्या है, ओड नंबर। ओड के केस में जब आउटपुट ओड है तो आप इनपुट ओड के केस में यहाँ रख देंगे, यहाँ पे इनपुट क्या रखा होगा 2r रखेंगे, इनपुट जब 2r रखेंगे तभी आपको आउटपुट 2r + 1 मिले, 2r यहाँ रखेंगे 2r + 1 दिए। इनपुट अगर आउटपुट में 2r मिल रहा है, इसका मतलब इनपुट में ये इवन नंबर मिल रहा है,
तो इनपुट में इवन के केस में कौन सा है, ये वाला x-1। तो यहाँ इनपुट क्या रखा होगा आपने, 2r+1 रखा होगा, ताकि कैंसिल होकर आउटपुट क्या मिले, 2r। ये सिंपली है। दिस बिलोंग्स फॉर एवरी एलिमेंट्स इन कोडोमेन देयर मस्ट बी exist x in domain. That is simply I have write down. You have to practice this question 2 to 3 times. This is very important question. Next question है this, so that this onto function f onto ऑलरेडी दे रखा है कि फंक्शन onto है, f फंक्शन दिस इज इनपुट दिस इज आउटपुट इज ऑलवेज 1 1 होगा। तो मान लीजिए सेट ये सेट ए ये सेट बी, सेट ए ये सेट बी, ये इनपुट दे रखे 1 2 3। मान लो ये सेट है, ये बी सेट है, ये आउटपुट लिखे वो भी क्या है 1 2 3। अब ये कहते हैं कि ये फंक्शन ऑन टू है, ऑलरेडी ऑन टू है, तो इसमें कोई भी कनेक्ट इस तरह से करना है कि कोई भी एलिमेंट्स ऑर्फन नहीं बचना चाहिए। तो आप जैसे ही कनेक्ट करेंगे, मान लो ये 1 इससे कनेक्ट हुआ, 2 को इससे कनेक्ट कर दिए, कैसे भी कनेक्ट कर सकते हैं, 3 को कनेक्ट दिए, तो आप ये क्या है ऑन टू फंक्शन है, सारे एलिमेंट्स कनेक्ट है तो ऑन टू। तो ऑन टू जब भी होगा तो दिस ऑन टू दैट मीन्स एवरी एलिमेंट इज कनेक्टेड विथ 1, एवरी एलिमेंट्स हैव यूनिक इमेज। ठीक है, 1 के अक्रॉस 1 है, 2 के इनपुट तो आउटपुट 3 देने के सारे के इंजेक्शन कितना है 1 इनपुट 1 आउटपुट 1 इनपुट 1 आउटपुट 1 इनपुट 1 आउटपुट दैट इज 1 1। क्यों दिस केस में हमेशा 1 1 होगा, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ जो भी आप देख रहे हैं नंबर ऑफ एलिमेंट जितने इनपुट है उतने आपको क्या आउटपुट मिल रहे। लिख लीजिए नंबर ऑफ इनपुट इक्वल टू नंबर ऑफ आउटपुट। इनपुट जब आउटपुट के सेम है और फंक्शन क्या है आपका ऑन टू है, दैट मीन्स इट हैज़ टू बी 1 1। तो हमेशा क्या होगा, इट हैज़ टू बी 1 1। ये हमेशा 1 1 फंक्शन ही पॉसिबल है। आप कहेंगे सर मैनी वन कर सकते हैं, तो ट्राई करते हैं इसको। मैनी वन जैसे इनपुट है तो उस केस में पॉसिबल नहीं होगा, दूसरा केस पॉसिबल नहीं है। देखते आप अगर मैनी वन बनाए तो जैसे आपने 1 को कनेक्ट कर दिया, ये सेट है ये सेट भी, 1 को कनेक्ट किया 1 के साथ, 2 को भी कर दिया 1 के साथ, और जैसे ही आप 3 को किसी एक के साथ कनेक्ट करेंगे, आपने कनेक्ट कर दिया 2 के साथ, तो ये क्या बच जाएगा, ऑर्फन एलिमेंट हो जाएगा। ऑर्फन एलिमेंट होगा, क्या बच जाएगा, ऑर्फन एलिमेंट। और जब भी आपका एलिमेंट ऑर्फन एलिमेंट होगा तो ये क्या हो जाएगा, नॉट ऑन टू। ये क्या हो जाएगा, नॉट ऑन टू। और आपको फंक्शन में क्या दे रखा है, ये ऑन टू फंक्शन है। इसका मतलब ये केस पॉसिबल नहीं है। तो सिंपल एक ही केस पॉसिबल है जिस इनपुट आउटपुट के बराबर है और ऑन टू फंक्शन है, तो ये फंक्शन हमेशा क्या होगा, 1 1 फंक्शन होगा। दैट वी हैव प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चंस, सो दैट द फंक्शन दिस इनपुट दिस आउट मस्ट बी द ऑन टू। ये जब 1 1 ऑलरेडी है, ये फंक्शन 1 1 है, तो ऑन टू भी हमेशा होगा। ये आपको प्रूव करना है। तो सिंपली ये भी सेम टू सेम ही 1 1 मतलब एवरी एलिमेंट हैव 1 इमेज, एवरी एलिमेंट हैव 1 इमेज। सबकी कितनी इमेज बनेगी, एक ही इमेज बनेगी, एक इनपुट एक आउटपुट सिंपली। तो ये इनपुट एक सेट ले लीजिए, इन एलिमेंट्स है 1 2 3, आउटपुट के क्या है 1 2 3। अब ये कनेक्ट क्या है, 1 1 फंक्शन है, ऑलरेडी दे रखा है कि 1 1 है। अब 1 1 है तो 3 इनपुट है 3 आउटपुट है, तो सारे एलिमेंट एक के साथ ही कनेक्ट होंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी बताया गया है कि ये 1 1 है। तो आप एक को एक के साथ ही कनेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे 3 इनपुट है तो 3 आउटपुट है, तीनों 1 के साथ ही कनेक्ट होंगे, अलग अलग कनेक्ट होंगे, ताकि ये 1 1 हो जाए। और 1 1 है तो आप देखेंगे इसमें कोई भी ऑर्फन एलिमेंट नहीं है, इसमें ऑर्फन एलिमेंट नहीं है, तो ये दिस फंक्शन इज नो ऑर्फन। इसमें कोई भी नो ऑर्फन एलिमेंट है, नो ऑर्फन, इट मीन्स दिस इज ऑन टू फंक्शन, दैट इज ऑन टू। क्योंकि 3 इनपुट है, इनपुट कितने 3 इनपुट है 1 2 3, आउटपुट भी कितने 3 आउटपुट, तो ये 1 1 होगा 1 1 होगा, दैट केस नो ऑर्फन एलिमेंट, दैट मीन्स ऑन टू फंक्शन, दिस मस्ट बी ऑन टू फंक्शन। नेक्स्ट, दैट्स वाई वी हैव discuss a very important results, that's the results mentioned in the examples are always true. Above example just arbitrary for a finite set. Finite set के केस में x is must be a 1 1 function x to set x is necessary on to and on to mapping f of x to x, this is 1 1 for a finite set. finite set के केस में ये पॉसिबल है, ठीक है। तो ये फाइनल से इसमें वही ये बता रहा है कि जब फंक्शन 1 1 है तो ये क्या होगा, ऑन टू हो जाएगा। और जब भी आपका फंक्शन
1 फंक्शन है, फाइनाइट केस में इनपुट आउटपुट के बराबर है तो 1 ऑलवेज होगा। ये आपने प्रूव कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट सेट में आप पढ़ेंगे, नेक्स्ट सेक्शन में कंपोजिशन ऑफ फंक्शन एंड इन्वर्टिबल फंक्शन। हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल मैथ्स बाय जीवन राठौर। हैव ए नाइस डे, थैंक यू, गुड लक, बाय बाय, टेक केयर। ठीक है, बाय बाय, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।